One Sant Bahadur Lala was kidnapped by the co-accused persons who are the main accused in this matter, my lord, and took him to the Muzaffarpur, Bihar, and demanded a ransom of rupees 40 lakhs, my lord. क्योंकि खालिद का मकान था, लेकिन खालिद तो खुद जेल में था। जी साहब, सर जो बलदेव का जिसके मेमोरेंडम में इनका नाम आ रहा है, उसने भी ये बोला कि ही वॉज बिहाइंड दी बार्स, पर इसका मकान हमने उसको रख। तो ये जेल से रैकेट चला रहे थे खालिद मियां। 439 of CRPC. Why this first bail application has come to this court? My lord, because the bail of co-accused person has been rejected by the lordships only. कहाँ है वो मेमो? विजिट कर देते हैं। कब रिजेक्ट की? Well, the offences got arrested under section 364A, 365. ठीक है, रिजेक्ट कब की? को एक्यूज की तो बता दीजिए। कहाँ डिटेल्स दी हैं आपने? सर आपके द्वारा की गई है सर। 5/7/23 को रिजेक्ट किया हमने। सर ठीक है, चलिए अब बताइए क्या है मैटर ये। Sir, offences got arrested under section 364A, 365, 120B and 24 of IPC, my lords. My lords, it is alleged by the prosecution that on 24/7/2018, one Sant Bahadur Lala was kidnapped by the co-accused persons who are the main accused in this matter, my lord, and took him to the Muzaffarpur, Bihar, and demanded a ransom of rupees 40 lakhs, my lords. Then after, my lords, police later on recovered Sant Bahadur Lala from Bihar, my lords, from the possession of 3 persons, my lords. Ankit Singh, Ajit Singh and Sehlan Raza. And later on, my lords, present applicant made an accuse on the basis of the memorandum of the co-accused persons, my lords. क्या कहा उन्होंने memorandum? It is alleged, my lords, that the person who was kidnapped, my lord, from where he was recovered, that place was belongs to the present applicant, my lords. This is the allegation against the present applicant, my lord. बिहार में जहाँ से पकड़ा गया है वो खालिद साहब की जगह है। Yes, sir. उनका कहना ये है, sir. As a matter of fact, my lords, I have filed annexure A2, my lords. पेज नंबर? Page number 12, my lords. The certificate of the jail, my lords. Superintendent of jails, Muzaffarpur, my lord. As a matter of fact, my lord, in one of the criminal case, my lord, present applicant was convicted, my lord, and he was serving his sentence during that period at the time of the incidents, my lords. अच्छा, कब से कब तक थे? My lord, ये जो सर्टिफिकेट दिया इन्होंने, ये दिया 22/11/2016 से 13/5/2021 तक। उस जेल में थे हमारे, 17/7/2022 से 18/7/2022 तक डिस्ट्रिक्ट अरायरा में इनको शिफ्ट कर दिया गया था। And my lord, present applicant is nowhere involved in the alleged crime, my lords, and there is no vote shown on the side of the present applicant. He only basis only on the basis of the memorandum he made an accuse in this matter. वेरीफाई करा लिया जो A2 जो है? नहीं सर, अब A2 का वेरिफिकेशन ले आइए श्री योगेश सोनी फॉर द मैं आई सबमिट वन थिंग। सर इनके 164 के स्टेटमेंट में कंप्लेनेंट ही हैज स्टेटेड, आई मे बी परमिट टू रीड द 3 लाइंस। हाँ पढ़िए ना। मुझे जहां पर बंदी बनाकर रखा था उस गांव का नाम मनोछापर था। बलराज, जिला मुजफ्फरनगर, बिहार में रखे थे। मुझे जिस मकान में बंदी बनाकर रखे थे उसके मकान का मालिक का नाम खालिद अंसारी था। एवं उत्तर प्रदेश बिहार की पुलिस ने गोपनीय जानकारी प्राप्त होने के आधार पर मुझे जिस कमरे में बंद रखा था वहां पहुंची तो वहां पर 3 लोग पकड़े गए थे, जिनमें अंकित, कोई एक खान जिसका नाम आज मुझे याद नहीं है, कुल 3 लोग पकड़े गए थे। आफ्टर दैट ऑन देयर मेमोरेंडम। खालिद का मकान था, लेकिन खालिद तो खुद जेल में था। जी साहब, सर जो बलदेव का जिसके मेमोरेंडम में इनका नाम आ रहा है, उसने भी ये बोला कि ही वॉज बिहाइंड दी बार्स, पर इसका मकान हमने उसको रखा। माय लॉर्ड परमिट टू रीड इसका हाँ पढ़िए ना, प्लीज पढ़िए। सर ये मेमोरेंडम मैं पढ़ रहा हूँ। बलविंदर सर, खालिद अंसारी जो मुजफ्फरनगर जेल में बंद है, जिसका घर में लाल और संत बहादुर को 20/7/18 से 8/9/18 तक रखे थे। तमीम मियां से बातचीत होती थी। तमीम मियां तथा खालिद अंसारी हरीश आपराधिक षड्यंत्र रचकर 40 लाख रुपए फिरौती की रकम लिए थे, जिसमें 4-5 लाख खालिद अंसारी को मिलना था। तो ये जेल से रैकेट चला रहे थे खालिद मियां। His house has been used to kept that समझ गए kidnapping person। किसका स्टेटमेंट पढ़ा भी आपने? से मेमोरेंडम है सर, ये मेमोरेंडम पढ़ा मैंने बलविंदर उर्फ राजेश सिंह का। सर बलविंदर का एग्जाम
इन्वेस्टिगेशन हो गया, चार्जशीट फाइल हो गई। सर सर चार्जशीट फाइल। कब से कस्टडी में है खालिद में? सर कस्टडी में सर ये 2008 से जेल में ही सर ये। अरे वो तो जेल में, अभी इस केस में कब अरेस्ट हुए आप? सर ये एक्चुअली सर इनका सर 2018 की घटना है, बट पुलिस ने जो इनका वारंट मांगा था सर ये फरवरी 2023 में मांगा था, हाँ। जिसमें सर इनके खिलाफ में चालान पेश हुआ था 19/5/2023 को, हाँ। और इसको यहाँ प्रोड्यूस किया गया था 10 अगस्त 2023 को माय लॉर्ड्स। हाँ। हाँ फिर सर जब से जेल में ही सर। ठीक है, 19/5/2023 के बाद सप्लीमेंट्री चालान पेश हो गया। सप्लीमेंट्री चालान चार्जशीट पेश हो गई। पेश होगी सर। ठीक है, वेट करिए अभी। सर मेरा निवेदन सर ये है सर, एक्सेप्ट दी मेमोरेंडम सर, इनके पास कोई भी एविडेंस नहीं था। There is no evidence to indicate my lord that present applicant is any way connected in this crime my lords, because हमारे जो दस्तावेजी पंचनामा वो भी देखना है my ऑल lords। डिटेल्स वगैरह लिए? सर कॉल डिटेल्स इनकी नहीं, पर अदर एक्यूज की है, जिससे ये मैच हो रहा है कि दे आर इन्वॉल्व इन दिस क्राइम सर। खालिद का पूछ रहे हैं हम तो, वी आर सर खालिद के बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी सर। सर ये बोल के हमारा नेक्सस था जेल में। इन्फॉर्मेशन के आज पार्डन सर। क्यों आए बिगर इन्फॉर्मेशन के? सर आपका तो ये मेमोरेंडम पर एक कथन है कि वो जेल से रैकेट चला रहा था, तो आपको कुछ तो मटेरियल। सर इसके 164 के स्टेटमेंट में भी आया है 164 के किसके स्टेटमेंट में आया है? सर, द कंप्लेनेंट हु हैज बीन किडनैप्ड। ठीक है, तो उसने खालिद को तो देखा नहीं, नहीं देखा सर, तो उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि खालिद चला रहा था? उसका मकान इस्तेमाल हुआ, ये आया सर। ठीक है, श्री योगेश सोनी, लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट खालिद, श्री भोरक, लर्नेड पैनल लॉयर फॉर स्टेट। पैनल लॉयर है ना? जी सर। श्री, this is first bail application on behalf of the applicant Khalid under section 439 CRPC. Full stop. Case crime number 262/2018 is registered at police station Gould, district Rewa for offence under section 364A, 365, 120B and 34 IPC. He is in custody with effect from 20/8/2023. Next paragraph. It is submitted that Khalid has been made an accused on a basis of a memorandum of co-accused that